بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست نے گھر پر قبضہ کر لیا اور دونوں یتیم بچیوں کو گھر سے نکال دیا۔ پھر جنات کیسے ان یتیم بچیوں کے محافظ بنے، سنو سچی کہانی۔ سردی تھی کہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، اوپر سے دسمبر کی سرد ہوائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں برف سے بنے غار میں دھکیل دیا ہو۔ ہم دونوں بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آنیا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ زرد تھا اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میری طرح وہ بھی دونوں بازو بغلوں میں دیے سردی کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم چل چل کر تھک گئے تھے، مگر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں سمجھ آ رہی تھی جہاں پر چند گھنٹوں کے لیے سردی سے بچاؤ ممکن ہوتا۔ چلتے چلتے آنیا نے کہا، آپی میں تھک گئی ہوں، ہم اور کتنا چلیں گے؟ اس کی روحانسی آواز سن کر میرا دل گویا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس آنی اب زیادہ دور نہیں چلیں گے، کوئی نہ کوئی جگہ تو مل ہی جائے گی۔ حالانکہ مجھے خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ واقعی میں ہی کوئی جگہ مل جائے گی۔ آج تو ایسا لگتا تھا جیسے ساری زمین ہی ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ آنیا نے مزید کوئی بات نہیں کی، شاید اس کے اندر مزید کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بس میرے ساتھ اس پہاڑی رستے پر خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اچانک ہی چاند کی روشنی میں میری نظر ایک غار پر پڑی۔ میں نے جلدی سے آنیا کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف کھینچتے ہوئے کہا، آنیا چلو اس غار میں چلتے ہیں، یہاں پر تھوڑی بہت تو سردی سے پناہ مل ہی جائے گی۔ آنیا جھجکتے ہوئے غار کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، وانیا آپی اگر اندر کوئی جانور ہوا تو؟ اس کی بات سن کر میں بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور آنیا کو غار کے منہ سے دور کھڑا کر کے پتھر اندر اچھال دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوسرا پتھر بھی اچھال دیا، مگر اندر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ میں نے مطمئن ہو کر آنیا کا ہاتھ پکڑا اور غار کے اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ یہ غار اچھا خاصا بڑا تھا۔ ہم دونوں غار کے ایک کونے میں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ گئیں۔ تیز ہواؤں سے تو نجات مل گئی تھی، مگر سردی ابھی بھی جوں کی توں تھی۔ میں نے اپنی شال اور آنیا کی شال دونوں کو دوہرا کیا اور ہم دونوں ہی اسے لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنیا کی آواز سنائی دی، آپی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، حوصلہ کرو آنیا، اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں، اس لیے بس یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ آنیا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سارے غار میں کچھ عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، نہ جانے کس چیز کی تھی، مگر تھی بڑی پیاری۔ خیر ہمیں یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ آنیا کا سارا وزن مجھ پر آ پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بڑی شدت سے کپکپانے لگا۔ میں گھبرا کر اسے آوازیں دینے لگی، آنیا آنیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا کر رونے لگی تھی۔ آنیا کا ننھا سا جسم سردی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے آنیا کو پکار رہی تھی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ میں نے بے بسی سے سوچا۔ اسی وقت باہر کوئی آواز ہوئی تو میں چونکی۔ پتہ نہیں کون تھا باہر، کوئی انسان تھا یا جانور، مگر جو بھی تھا میں نے اپنے سارے ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ یہ میری بہن کی زندگی کا معاملہ تھا۔ میں نے زور زور سے پکارا، کوئی ہے باہر؟ خدا کے لیے میری مدد کرو، میری بہن مر رہی ہے۔ باہر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ میں مایوس ہو گئی، شاید ہم دونوں بہنوں کو اسی غار میں سردی سے ٹھٹر کر مرنا تھا۔ میں نے آنیا کے ٹھنڈے پڑتے جسم کو خود سے لپیٹ لیا اور غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی غار کے باہر روشنی نظر آئی تو میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ کیا پتا باہر سے کوئی ہماری مدد کے لیے آیا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے پھر سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی لالٹن اٹھائے غار میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو میرا ہم عمر ہی لگتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، اتنی سردی میں اس برفیلے غار میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز میں درشتی تھی۔ میں سہم گئی تھی، مگر پھر ہمت کر کے کہا، بابا جی ہم یتیم ہیں، ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں،
हमारे पास अब कोई चाय पनाह नहीं, इसलिए हमने सर्दी से बचने के लिए इस गार में पनाह ली थी। मगर मेरी छोटी बहन सर्दी की शिद्दत से बेहोश हो गई है और इसका सारा जिस्म सुन्न हो चुका है। खुदा के लिए हमारी मदद करें, मेरी बहन को बचा लें। मेरी भर्राई हुई आवाज सुनकर बूढ़ा खामोश हो गया। फिर उसने उस लड़के से किसी अजनबी ज़बान में कुछ कहा। मैं हैरत से उन दोनों को देख रही थी। अचानक ही मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों तले अंधेरा छा रहा है। चंद लम्हों के लिए शायद मैं होशो हवास खो बैठी थी। दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को एक मुख्तलिफ जगह पाया। ये कोई तंग सा कमरा था जिसमें 2 पुरानी कुर्सियां और एक पलंग और एक अलमारी मौजूद थी। बाहर अंधेरा था जिसकी वजह से मैं बाहर का मंजर नहीं देख पा रही थी। कमरे की दीवार से एक पुरानी लालटेन लटक रही थी। मैंने मुड़कर अपनी बहन को देखा। वो कंबल में लपटी सो रही थी। वो अभी तक बेहोश थी। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर देखा। वो पहले की तरह सर्द नहीं थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर बिस्तर से नीचे उतर गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही बूढ़ा और लड़का अंदर आ गए जो हमें गार में मिले थे। बूढ़े ने मुझे डरते हुए देखकर कहा, घबराओ नहीं बेटा, तुम यहाँ महफूज हो। मैंने शुक्रगुजार नजरों से उन्हें देखा। मैंने कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बहन को बचाया। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा कहने लगा, नहीं बेटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने पूछा, आप कौन हैं और हम कहाँ हैं? हम उस जगह से थोड़ी दूर रहते हैं जहाँ पर तुम दोनों हमें मिली थी। उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ अपने दोस्त के घर से आ रहा था, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। फिर हम तुम्हें यहाँ ले आए। यहाँ पर तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बूढ़े ने शफकत भरी आवाज में कहा और लड़के को कोई इशारा किया। लड़का बाहर चला गया। चंद लम्हे के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथों में रुमाल से ढकी हुई प्लेट थी जिसमें बिरयानी थी। बूढ़े ने मुझसे कहा, तुम खाना खाओ और फिर आराम करो। चाहो तो तुम दोनों यही रहो, नहीं तो अगर कहीं जाना है तो सुबह को हमें कह देना, हम तुम्हें छोड़ आएंगे। हमारा कोई नहीं है बाबा, हम यतीम हैं। मैंने उदासी से जवाब दिया। मेरी बात सुनकर बूढ़े ने कहा, कोई बात नहीं, आज से ये तुम्हारा घर है बेटा। अरे मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गया। मेरा नाम शमून है और ये मेरा बेटा खिजर है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने कहा, मेरा नाम आनिया है और ये मेरी छोटी बहन वानिया है। खाना खाने का कहकर वो दोनों बाहर चले गए। मैंने वानिया को उठाया तो वो पहले तो हैरत से इधर उधर देखती रही, फिर मुझसे पूछने लगी, आपी हम कहाँ हैं? मैंने उसे बताया कि हमें एक बाबा अपने घर ले आए हैं और उसे खाना खिलाने लगी। खाना बहुत मजेदार था। खाना खाने के बाद हम दोनों पर गुनूदगी छाने लगी और बहुत जल्द ही हमें नींद ने आ लिया। सुबह खूबसूरत और रोशन थी। कमरे की खिड़की से सुनहरी धूप अंदर दाखिल हो रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास चली आई और बाहर का नजारा करने लगी। दूर दूर हद निगाह तक हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। बुलंद बाला दरख्त, इनकी ओर से उभरता हुआ सूरज बेहद भला लग रहा था। आपी हम कौन सी जगह पर हैं? वानिया ने नीचे देखते हुए मुझसे पूछा। मैं खुद भी नहीं जानती, मगर हम महफूज जगह पर हैं। मैंने कहा, यहाँ से तो हमें कोई नहीं निकालेगा ना आपी? वानिया ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर मुझे हमारा घर याद आया और आंखों में आए आंसुओं को मैंने बमुश्किल रोका। नहीं मेरी जान, हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। मैंने कहते हुए वानिया का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आई। आसपास बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। ये घर एक पहाड़ी पर था, छोटा मगर खूबसूरत था। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस घर से या इस पहाड़ी के नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अजीब बात है, मैं पड़पड़ाई तो आनिया चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ आपी, क्या अजीब है? मैं चौंक गई। मैंने जल्दी से मुस्कुराकर उससे कहा, कुछ नहीं गुड़िया। कहने को तो मैंने कुछ नहीं कह दिया, मगर यहाँ पर कुछ था जो अजीब था। ऐसा लगता था जैसे कोई कहीं से छुप कर देख रहा है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कहीं पर कोई नजर न आया। अचानक ही आनिया ये कहते हुए एक तरफ लपकी, अरे आपी वो देखें, कितनी अजीब जगह है। मैंने उसके पीछे जाते हुए उस तरफ देखा। वाकई वो जगह बड़ी अजीब थी। उस तरफ हरा भरा कित्ता था और ये पहाड़ियों के दामन तक चला गया था, और जहाँ पर ये खत्म होता था वहाँ पर एक पहाड़ी पर बड़े ही अजीबोगरीब से नक्शो निगार बने हुए थे। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि ये दरअसल एक चेहरा था।
बड़ा ही अजीबोगरीब और भयानक चेहरा। न जाने क्यों मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नादीदा कुव्वत उस तरफ धकेल रही हो। मैं बेइख्तियार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अचानक ही मुझे ठटक कर रुक जाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जानवर बहुत जोर से कुर्राया हो। मैं बौखलाकर पीछे हटी। मैं आप दोनों को घर में देखने गया था। आप दोनों यहाँ हैं। खिजर की आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा। वो हमारे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, आपने हमें डरा दिया था। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए घर चलें, नाश्ता कर लें। खिजर ने वानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। मैंने पूछा, खिजर, ये घर इतनी दूर दूर और अलग थलग क्यों बना हुआ है? उसने जवाब दिया, बाबा पुरसुकून जगहों को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस जगह पर घर बना दिया। कमरे में जमीन पर एक दस्तरखान बिछा हुआ था। वहाँ पर वही बूढ़े बाबा बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने उन्हें सलाम किया तो वो बोले, आओ बेटा बैठो। हम दोनों एक तरफ बैठ गईं और खिजर बाबा शमून के साथ बैठ गया। नाश्ते के दौरान खामोशी छाई रही। जब हम नाश्ता करके फारिग हो गए तो बाबा शमून ने कहा, बेटी, रात को तुम लोग थकी हुई थी, इसलिए मैंने पूछा नहीं था कि तुम दोनों कौन हो और उस रात गार में क्या कर रही थी। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताने लगी। उनको अपने घर के बारे में बताते हुए मैं अपने माजी में खो गई। मेरे सामने गुजरा वक्त किसी फिल्म की तरह चलने लगा। हम अपने माँ बाप की दो ही बेटियां थीं। हमारे माँ बाप ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उन दोनों के खानदान वालों ने उनसे राब्ते खत्म कर दिए थे। वो दोनों एक दूर दराज शहर में आ बसे, जहाँ अब्बू के एक दोस्त भी रहते थे। अब्बू के दोस्त ने उनकी बहुत मदद की। अब्बू ने उनके घर के पास घर ले लिया और उनके साथ रहने लगे। उस दिन मैं स्कूल से बाहर निकली तो अब्बू पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं दौड़कर अब्बू से लिपट गई। मैंने कहा, अब्बू, आज ड्राइवर के बजाय आप कैसे आए हैं? आज हम अपनी बेटी को एक प्यारी सी गुड़िया दिखाने के लिए खुद लेने आए हैं। अब्बू ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हैरानी से अब्बू को देखा और उनसे पूछा, कौन सी गुड़िया अब्बू? अब्बू ने मुस्कुराते हुए मुझे गाड़ी में बिठाया और कहने लगे, चलो खुद चल कर देख लो। मैं इश्तियाक से सोचते हुए बैठ गई। यकीनन अब्बू मेरी कोई गुड़िया लाए होंगे। गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। मैंने हैरानी से अब्बू को देखते हुए सोचा, अब्बू घर जाने के बजाय अस्पताल क्यों आए हैं? अब्बू मुझे लेकर एक कमरे में आ गए। कमरे में अंदर अम्मी को बेड पर देखकर मैं भागती हुई उनके पास आई, लेकिन अम्मी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। उनके पास एक गुड़िया सोई हुई थी। अब्बू ने मुझे अम्मी के पास बिठाया और मेरी गोद में वो गुलाबी सी गुड़िया डाल दी। मैं तहीर से उसके नन्हे मुन्ने हाथों को छू रही थी। ये तुम्हारी बहन है, अम्मी ने बताया। अब्बू ने उसका नाम मेरे नाम की मुनासबत से वानिया रखा था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैं स्कूल से आकर सारा दिन वानिया से खेलती रहती थी। वानिया 2 साल की ही हुई थी कि अम्मी बीमार हो गई। अब्बू ने उनका बहुत इलाज कराया, मगर वो जानवर न हो सकी और हमें रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद अब्बू भी टूट से गए, मगर हमारी खातिर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। फिर एक दिन अब्बू को अंकल ऑफिस से अपने साथ ले आए। अब्बू बहुत तकलीफ में नजर आ रहे थे। अंकल ने मुझे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, मगर अब वो बेहतर है। उनको थोड़ी देर बाद ये मेडिसिन देकर सुला देना। अंकल मुझे तसल्ली देकर अपने घर चले गए। अब्बू खुनूदगी में थे। मैं उनके पास बैठी रही। 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली तो मैं जल्दी से उनके पास आ गई। अब्बू, कैसे हैं आप? मैंने उनका हाथ थामकर कहा। उनके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। आनिया, तुम बड़ी हो, वानिया का ख्याल रखना। उसका तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, अब्बू ने थके हुए लहजे में मुझसे कहा। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। नहीं अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। मगर अब्बू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दौड़कर अंकल को बुला लाई। अंकल अब्बू को आवाजें देने लगे। अशफाक, मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, अब्बू ने कहा और चंद उखड़े उखड़े सांस लेने के बाद खामोश हो गए। मेरे हाथ में मौजूद उनका हाथ सर्द हो गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी। अब्बू के जाने के बाद कुछ दिन तो अंकल ने हमारा ख्याल रखा,
फिर एक रात हमें घर से निकाल दिया। हमने उनकी बहुत मिन्नतें की मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मायूस होकर हम एक सड़क पर चलने लगी। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी हमें एक गाड़ नजर आया और हम उसमें आ गई। वहां से हमें आप यहाँ ले आए। मैंने बात खत्म की तो एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। अगरचे मैं सिर्फ 14 साल की थी मगर अपनी उम्र से आगे सोच रही थी। आनिया मुझसे 4 साल छोटी थी और जैसा कि आमतौर पर होता है, छोटे बहन भाई बड़ी बहन भाई की मौजूदगी में मुकम्मल तौर पर उन्हीं पर इन्हिसार करते हैं। आनिया भी मेरी मौजूदगी में खुद को महफूज तस्वुर करती थी, अपने लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करती थी। मुझे ये जगह कुछ पुरस्कार और हटकर महसूस हो रही थी। मेरी बात सुनकर शमून पापा और खिजर भी अफसरदा से हो गए थे। फिर शमून पापा ने कहा, तुम उदास न हो मेरी बच्चियों, जल्द ही तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, वो कैसे शमून बाबा? वो लोग तो बहुत ही ताकतवर हैं और असर रसूख वाले हैं, फिर किस तरह हमें हमारा घर वापस मिल सकेगा? खिजर ने बीच में बोलते हुए कहा, वानिया, वो जितने भी ताकत या असर रसूख वाले हैं हमसे बचकर कहीं भाग नहीं सकते। तुम बेफिक्री से यहाँ पर रहो, जब वक्त आएगा तो उस वक्त तुम अपना घर हासिल करके रहोगी। उसकी बातों से मेरे और वानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खिजर बाहर गया और चाय बनाकर ले आया। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चाय पीने लगे। ये उसी शाम की बात है। उन पहाड़ों से बहुत फासले पर एक जंगल के किनारे चंद कटे हुए दरख्तों की लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। उनके आसपास ही एक झोपड़ी थी जो तामीर के इब्तिदाई मराहिल में थी। 2 लोग वहां पर एक आग का अलाव जलाए बैठे थे। एक 60-70 साल का बूढ़ा था और दूसरा नौजवान था, मगर दोनों का हुलिया बहुत ही गंदा और कराहत आमेज था। लंबे लंबे बाल, मट्टी और पसीने से चिकट हुए कपड़े, गंदे और बढ़े हुए नाखून और जर्द दांत। उन दोनों के हाथों में कुछ पत्थर थे। वो धीरे धीरे मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते और फिर उन पत्थरों पर फूंककर उन पत्थरों को अलाव में झोंक देते। जब भी कोई पत्थर अलाव में गिरता तो एक गिड़गिड़ाहट की सी आवाज सुनाई देती और उसके साथ ही अलाव के शोले बुरी तरह भड़क उठते। थोड़ी देर बाद शोले कम हो जाते तो वो दोनों फिर से वही अमल दोहराते। पत्थर खत्म हो गए तो वो दोनों भी हाथ छटक कर उठ खड़े हुए। बूढ़े का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि नौजवान कुछ परेशान और फिक्रमंद सा नजर आ रहा था। उसने कहा, सरकार, क्या आपको यकीन है कि ये अमल कामयाब हो जाएगा और वो आजाद हो जाएगा? बूढ़े ने अपने गंदे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, मुझे यकीन है जग्गू, ये अमल बरसों का आजमूदा अमल है। जिसने भी सही शराइत के साथ इसे मुकम्मल किया है वो 100% कामयाब होता है। ये मेरी 50 साला रियाजत का निचोड़ है। हम जरूर कामयाब होंगे। जग्गू ने सर हिलाकर कहा, मुझे इसमें शक नहीं है सरकार, मगर वो लड़की, वो तो उस बूढ़े के हिफाजती हिसार में है। हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? सरकार के चेहरे पर एक मकरूह सी मुस्कुराहट रेंग आई। उसने कहा, ये तू मुझ पर छोड़ दे, देख मैं किस तरह उसे उस हिसार से निकालता हूँ। जग्गू भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि सरकार को जब इतना यकीन होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो कामयाबी के करीब पहुंच चुका है, और जग्गू और सरकार का ये एतमाद गलत नहीं था। शाम होते ही मुझे शदीद नींद आने लगी। कुछ यही सूरत-ए-हाल आनिया के साथ भी थी। सर्दी मजीद बढ़ गई थी और बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। जल्द ही खिजर हमारे लिए खाना ले आया। आज दस्तरखान पर शमून बाबा मौजूद नहीं थे। मुझे उनकी कमी महसूस होने लगी तो मैंने पूछा, शमून बाबा कहाँ हैं खिजर? खिजर ने जवाब दिया, वो किसी काम से गए हुए हैं, उम्मीद है कि जल्दी लौट आएंगे। मैंने सर हिला दिया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और था। हमने डटकर खाया और फिर खिजर बर्तन उठाकर बाहर चला गया। जाने से पहले उसने कहा, वानिया, आज बाबा घर पर नहीं है, इसलिए बाहर मत निकलना। दरवाजे को अच्छे से अंदर से बंद कर लेना और सुबह से पहले नहीं खोलना, समझ गई ना? मैंने परेशान होकर पूछा, क्यों, सब ठीक है ना? क्या कोई परेशानी या खतरे की बात है? उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, घबराओ मत, बस एहतियातन कह रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, और वैसे भी इस सर्दी में तो बिस्तर से ही निकलने को जी नहीं चाहता। बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और चला गया। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और आनिया के पास लेटकर लिहाफ में घुस गई।
थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खो चुकी थी। शायद आधी रात का वक्त था जब आनिया अचानक ही उठकर बैठ गई। उठ जाओ आनिया, किसी ने जैसे उसके कान में सरगोशी की। आनिया ने आहिस्ता से लिहाफ हटाया और बिस्तर से उतर गई। धीरे धीरे चलते हुए वो दरवाजे तक आई तो वो खुद ब खुद खुल गया और इसके साथ ही आनिया के कानों में फिर से वो सरगोशी गूंजी, बाहर आ जाओ। आनिया उस दरवाजे में से गुजरती हुई बाहर निकल आई और उस तरफ जाने लगी जिधर वो सब्ज़ और अजीब सा दिखाई देने वाला गार था। वो धीरे धीरे चलती हुई आगे बढ़ रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के इख्तियार में हो, क्योंकि उसके किसी भी अमल में उसकी कोई मर्जी शामिल न थी। उसकी आंखें अगरचे खुली हुई थीं, मगर वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नींद में चलता है। उसी हालत में वो कदम बढ़ाती उस गार की तरफ बढ़ने लगी। फासला बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए चंद मिनट में ही वो वहां तक पहुंच गई। उस गार के करीब जाकर वो उस दीवार नुमा चट्टान के पास खड़ी हो गई जिसके साथ गार का दहाना था। उस पुरस्कार सरगोशी नुमा आवाज ने फिर कहा, आनिया अपनी चूड़ी तोड़ो। आनिया ने बिला चुचरा के उस बात पर अमल किया तो फिर से उसने कहा, अब उसके कांच से अपनी हथेली पर जख्म लगाओ और जितना खून बहे उसे इस पत्थर पर डाल दो। आनिया ने ऐसा ही किया, मगर कांच से अपनी हथेली पर जख्म लगाते ही वो गोया होश में आ गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, फिर उसे अपने साथ दर्द टीसे सी उठती हुई महसूस हुई तो उसने अपने हाथ पर नजर डाली और ये देखकर उसका खून खुश्क हो गया कि उसकी हथेली और हाथ खून से तरबतर हो रहे थे। उसने खौफजदा होकर चीख मारने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज उसके हलक में ही घुट कर रह गई। उसने पीछे मुड़कर घर की तरफ भागने की कोशिश भी की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही लम्हे आनिया का हाथ उस पत्थर पर जा पड़ा और उसका खून पत्थर को सुर्ख करने लगा। जो ही आनिया के खून की चंद बूंदें पत्थर पर गिरी, एक गड़गड़ाहट की सी आवाज आई और फिर पत्थर आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। आनिया खौफ से कांपते हुए फटी फटी आंखों से उस पत्थर को देख रही थी। पत्थर घूमते घूमते एक तरफ हट गया और गार का दहाना किसी फाटक की तरह खुल गया। उसके साथ ही बदबू का एक तेज भपका आया और किसी की गुर्राहट सुनाई दी। आनिया थर-थर कांप रही थी। वो भागना चाहती थी, मगर किसी गैर मरई कुव्वत ने उसे वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर रखा था। थोड़ी ही देर बाद वहां से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई और फिर एक अजीबोगरीब मखलूक बाहर निकल आई। उसे देखकर आनिया खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था। तबीयत पर एक अजीब सी बेचैनी और उदासी सी छाई हुई महसूस हुई। मैंने दूसरी तरफ करवट ली और उसके साथ ही मैं उछल पड़ी। आनिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला हुआ था। मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरी और बाहर निकल आई। आनिया, आनिया कहाँ हो तुम? मैंने इधर उधर ढूंढते हुए आवाज दी, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। उसी वक्त खिज़र बाहर निकल आया। उसने पूछा, क्या बात है वानिया, इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई हो? मैंने रूहान सी आवाज में कहा, खिज़र, आनिया कमरे में नहीं है, दरवाजा भी खुला हुआ था। वो इतनी सुबह कभी नहीं उठती, न जाने कहाँ है और क्यों निकली है। खिज़र भी परेशान हो गया। हम दोनों आनिया को आवाजें देते हुए इधर उधर ढूंढ रहे थे जब अचानक ही मेरी नजर उस अजीब नजर आने वाले गार पर पड़ी। मैं चौंक गई क्योंकि गार के मुंह पर रखा हुआ पत्थर एक तरफ सिरका हुआ था। मैंने खिज़र को बाजू से हिलाकर उसे उस तरफ मुतवज्जे किया। वो उसे देखकर इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने तेजी से उस तरफ दौड़ते हुए कहा, ये किसने खोला? उसकी बात सुनकर मेरा दिल किसी अनजान अंदेशे के तहत जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही हैरान परेशान से गार के तहाने की तरफ देख रहे थे। पत्थर के ऊपर खून पड़ा था, ताजा ताजा और सुर्ख खून। खिज़र ने उसे देखकर अपना सर पकड़ लिया। ओह मेरे खुदा, वो आजाद हो गया। उन्होंने उसे आजाद करवा लिया। उफ आनिया, ये तुमने क्या कर दिया? मैं चौंक गई। कौन आजाद हो गया था? खिज़र ने सख्त परेशानी के आलम में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैं ना समझी से उसे देख रही थी, मगर जब उसने कुछ देर तक कुछ ना बताया तो मैं पूछने लगी, खिज़र क्या बात है? कौन आजाद हो गया और आनिया ने क्या किया है? और ये खून के निशानात कैसे हैं? खिज़र अचानक ही होश में आ गया। उसने कहा, माफ करना वानिया, मैं परेशान हो गया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मुझे उम्मीद है कि हमें आनिया वापस मिल जाएगी। मुझे अब बाबा को बुलाना पड़ेगा। वो पलटने लगा तो मैंने कहा, खिजर, मैं आनिया को ढूंढे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। खिजर मुड़ा और नरमी से मेरा हाथ थाम कर बोला, वो यहाँ नहीं है वानिया, नहीं है वो यहाँ। वो उसे अपने साथ ले गया होगा। मैं ठटक कर रुक गई। मैंने परेशान होकर पूछा, कौन ले गया होगा और क्यों? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि ये सब आखिर क्या हो रहा है? खिजर ने तहम्मुल से कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर और सब्र करो। बाबा को आ लेने दो, फिर तुम हर बात जान लोगी। उसकी बात पर मैंने बामुश्किल जब्त करते हुए उसके साथ ही घर की तरफ कदम बढ़ा दिए, मगर अंदर से मैं सख्त परेशान थी। न जाने आनिया कहाँ थी, उसे कौन ले गया था और इस वक्त वो किस हाल में थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खिजर मुझे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया और बेचैनी से बाहर टहलने लगा। थोड़ी देर तक शमून बाबा भी आ गए। उनके चेहरे पर छाई हुई परेशानी से पता चल रहा था कि वो सारी सूरत हाल जान चुके हैं। वो दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं शमून बाबा को देखकर खड़ी हो गई और परेशानी से कहने लगी, शमून बाबा, आनिया न जाने कहाँ खो गई है। मैं मजीद कुछ न कह सकी। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते देखकर शमून बाबा नरमी से बोले, बेटी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो। आनिया मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैंने बेताबी से कहा, हाँ क्यों नहीं शमून बाबा। बाबा, मुझसे जो हो सका मैं जरूर करूंगी, लेकिन खुदा के लिए आनिया को ढूंढने में मेरी मदद करें। वो तो बहुत छोटी है और डरपोक भी है। न जाने इस वक्त उसका क्या हाल हो रहा होगा। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। शमून पापा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए खिजर को पानी लाने का हुक्म दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में पानी से भरा गिलास मौजूद था। मैं हैरत से रोना भूलकर उसे देखने लगी। इतनी जल्दी वो पानी कहाँ से और कैसे ले आया? खैर, शमून पापा ने पहले मुझे पानी पिलाया और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, बेटी, अब जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें हिम्मत और हौसले से सुनना, और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। मैं कुछ ना समझते हुए उनकी बात सुनने लगी। शमून पापा ने कहा, बेटी, हम जिन्नात हैं और ये मेरा घर नहीं, जिन्नात की दुनिया का एक कैद खाना है और मैं इसका दारोगा हूँ। इस घर में मेरे अलावा बस खिजर रहता है, क्योंकि मैं इसे खुद से दूर नहीं रख सकता। इसलिए इस घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। शमून पापा ने खिजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन्नात? जिन्नात का नाम सुनकर मैं डर गई थी। मैंने खौफजदा नजरों से उन्हें देखा। वो दोनों मेरा डर भांप गए। डरो नहीं बेटी, हम भी तुम्हारी तरह ही हैं। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही हम जिन्नात भी होते हैं। हम नेक जिन्नात में से हैं और किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। वाकई उन्होंने तो अब तक हम दोनों बहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर वो गार और उसके पत्थर पर मौजूद खून। मैंने बेचैनी से शमून पापा को देखा और पूछा, लेकिन शमून पापा, वो गार और पत्थर? शमून बाबा ने हाथ उठाकर मुझे बोलने से रोक दिया और नरमी से कहने लगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बेटा। मैं खामोश होकर गौर से सुनने लगी। शमून बाबा कह रहे थे, ये कैद खाना ऐसी जगह है कि यहाँ पर आम तौर पर इंसान नहीं आते। अगर भूले भटके से कोई आ भी जाता है तो हम उसे वापस यहाँ से दूर छोड़ आते हैं। मगर जब तुम दोनों बहनें यहाँ आई तो मुझे सरदार का हुक्म मौसूल हुआ कि इन्हें अपने पास ठहरा लो। मैं बुरी तरह चौंक उठी। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? सरदार ने ऐसा क्यों कहा? शमून बाबा बोले, मैं खुद भी इस बात पर हैरान था कि आखिर सरदार को दो छोटी बच्चियों से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन मेरे पास हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए हम तुम दोनों को यहाँ पर ले आए। अगला दिन भी इसी उधेड़पन में मुब्तला रहा कि आखिर सरदार को ऐसा हुक्म देने की जरूरत ही क्यों पेश आई। मुझे बेचैनी होने लगी, इसलिए मैंने उस रात उसके पास जाकर मालूम करने का फैसला कर लिया। मैं तुम दोनों की देखभाल के लिए खिजर को यहाँ छोड़कर सरदार के पास चला गया। मुझे खिलाफे मामूल अपने पास देखकर वो सख्त हैरान हुआ। उसने मुझसे पूछा कि मैं अपना फरीजा छोड़कर उसके पास क्यों आया हूँ। मैंने घबराकर उससे पूछा कि उसने उन दोनों इंसान बहनों को कैद खाने में बुलाने का हुक्म क्यों दिया था। तब सरदार ने हैरत से कहा, कैसा हुक्म?
और कौन सी 2 बहनें? मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। और हमारा हुक्म तुम तक किसने पहुंचाया? मैंने उस जिनजात का नाम बताया जो मुझ तक पैगाम लाया था। सरदार के मातहत फौरन उसे ढूंढने के लिए गए, मगर थोड़ी ही देर बाद वो नाकाम होकर वापस आ गए। वो जिनजादा एक शरीर जिनजादा था, इसीलिए सरदार का और बाकी सबका भी यही ख्याल था कि उसने महज मेरे साथ शरारत की है। मगर मैं सख्त बेचैन हो गया, क्योंकि कैद खाना गैर महफूज था और उसके साथ ही खिज़र और तुम दोनों भी। मैंने फौरन ही वापस जाने की इजाजत मांगी और मेरी परेशानी देखते हुए सरदार ने मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी और साथ ही ये ताकीद भी की कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों इंसान बहनों को कैद खाने की हुदूद से दूर कर दूं, क्योंकि किसी इंसान की यहाँ मौजूदगी से उस बला के आजाद होने का खतरा था। मैं तेजी से यहाँ आ रहा था कि अचानक ही किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। अपनी बेइंतहा कोशिश के बावजूद भी मैं ये जान न सका कि हमला आवर कौन थे। उनसे लड़ते हुए मेरा बहुत सा वक्त जाया हो गया। वो भाग गए और जब मैं यहाँ पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आनिया के जरिए उसे आजाद करा चुके थे। इसीलिए उन्होंने सरदार का झूठा पैगाम मुझ तक पहुंचाया था कि एक तो इस तरह मैं तुम दोनों को यहाँ रख लूंगा और दूसरा उस पैगाम की तस्दीक के लिए सरदार के पास भी चला जाऊंगा और मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम दोनों को इस्तेमाल करके उसे आजाद करा देंगे। इस तरह उनके दोनों मकासद ही पूरे हो गए। शमून बाबा सांस लेने के लिए रुके तो मैंने पूछा, वो बला क्या है? उसे किस जुर्म में कैद किया गया था और आनिया के जरिए उसको कैसे आजाद करवा लिया गया? शमून बाबा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, दरअसल जिन्नात की कई किस्में होती हैं। उनमें से कुछ बलाएं सबसे खतरनाक और बुरी किस्म की होती हैं। वो जिन बेपनाह ताकतवर होता है और अगर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर ले तो वो बहुत ज्यादा तबाही फैलाता है। उस बला ने भी कुछ ऐसा ही किया। ताकत और जोर आवरी के नशे में उसने पहले इंसानों को और उसके बाद जिन्नात को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हमारे सरदार की बहन भी उसकी हैवानियत और जुनून का निशाना बन गई। उसने उसे बेआबरू कर दिया। सरदार खुद उससे डरता था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, मगर अपनी बहन की अस्मत दरी पर वो तिलमिला उठा। उसने गजबनाक होकर दूसरे ताकतवर जिन्नात को बुला लिया। मैं भी उनमें शामिल था और यूं बेइंतहा कोशिशों और शदीद लड़ाई के बाद हम लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। सरदार के हुक्म पर उसे यहाँ पर लाया गया और इस गार में कैद कर दिया गया। वो यहाँ पर पिछले 500 सालों से कैद था, लेकिन कुछ अरसा पहले एक सिफली इल्म के माहिर को उस बला के बारे में पता चला। उसने अपने इल्म के जरिए पता चलाया कि अगर वो उस बला को यहाँ से आजाद करवा के अपने बस में कर ले तो उससे उसको बेपनाह ताकत हासिल हो सकती है और वो उस बला से अपने मनपसंद काम करवा सकता है। उसने उसकी रिहाई के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उसे यहाँ से रिहा कराने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। अब यकीनी तौर पर 30 साल गुजरने के बाद वो फिर लौट आया है और इस बार उसके पास पहले से यकीनन ज्यादा ताकत होगी। न सिर्फ इतना, बल्कि उसे उन जिन्नात की मदद भी हासिल है जो उस बला की रिहाई चाहते हैं। उस बला को कैद रखने के लिए जिन्नात के सबसे बड़े बुजुर्ग की मदद हासिल की गई थी और उन्होंने उस पत्थर पर ऐसा हिसार बांधा था जिसे सिर्फ एक इंसान का खून जो मुसलमान हो और वो अपनी मर्जी से उस पत्थर पर अपना खून फेंके वही उसे तोड़ सकता था। उस जादूगर ने उस बला की रिहाई के लिए आनिया को इस्तेमाल किया। उस पत्थर पर पड़ा हुआ खून उसी का है। ये बात सुनकर मेरा सांस हलक में अटक गया। मैंने अटकते हुए पूछा, क्या क्या आनिया मर गई? शमून बाबा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो जिंदा है। वो उसे मारने का खतरा तब तक मोल नहीं ले सकते जब तक कि वो बला मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत हासिल नहीं कर सकती। ये सुनकर मेरी जान में जरा जान आई। मैंने पूछा, मैं इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हूँ? शमून बाबा मुझे समझाने लगे। वहां से दूर उसी जंगल के किनारे उस झोपड़ी के पास वो जादूगर और उसका नौजवान साथी एक देव हैकल वजूद को अपने दरमियान लिटाकर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। करीब ही 2 जिंदा हिरन बंधे हुए थे और उनसे जरा फासले पर अलाव के नजदीक आनिया बेहोश पड़ी थी। नौजवान ने पूछा, सरकार, ये कब तक ठीक हो जाएगा? सरकार ने गौर से उसको देखते हुए कहा, बस आज रात की तो बात है,
जैसे ही ये दोनों हिरणों का खून पी लेगा, ये अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर लेगा। नौजवान भी खुशी से मुस्कुराने लगा। ये फिर से उठ खड़ा होगा और हम अपनी खोई हुई ताकत भी वापस पा लेंगे और मैं अपने बाप का इंतकाम भी ले सकूंगा। वो दोनों कहकहे लगाने लगे। उसी वक्त आनिया को होश आ गया। उसने सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखा। वहां का माहौल देखकर वो मजीद खौफजदा हो गई। उसी वक्त उस बला को भी होश आने लगा। उसने इंसानी सूरत इख्तियार कर रखी थी, मगर वो भी इतनी भयानक थी कि आनिया डर से कांप गई। उन दोनों ने उसे सहारा देकर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बिठाया। वो खौफनाक नजरों से इर्द गिर्द देख रहा था। नौजवान, जो खुद भी एक जिन था, उसने हाथ से इशारा किया तो हिरन की गर्दन एक झटके से उड़ गई। बला ने हिरन की शहरक पर अपना मुंह रख दिया और गटागट खून पीने लगा। उसके बाद उस नौजवान ने दूसरा हिरन पेश किया और उसका भी यही हशर हुआ। उसके बाद वो हिरन का कच्चा गोश्त चबाने लगा। आनिया ये सब देखकर थर-थर कांप रही थी। बला के चेहरे पर रौनक वापस आ रही थी और यही वो वक्त था जब मैं, खिजर और शमून पापा उस झोपड़ी के पीछे पहुंच गए थे। शमून बाबा ने अपनी कुआतों को बरवैकार लाते हुए पता चला लिया था कि वो बला कहाँ है। उसके बाद उन्होंने सरदार को मुताल्ला किया था और सरदार ने उनकी मदद करने के लिए तमाम बड़े बड़े जिन्नात को इकट्ठा कर लिया था। उस वक्त अंधेरा छा रहा था। जब हम उस जगह पहुंचे, दूसरे जिन्नात ने उस सारी जगह को घेर लिया था। मैं शमून बाबा के कहने के मुताबिक जमीन पर रेंगती हुई आनिया के नजदीक पहुंची। उसी वक्त शमून बाबा ने उस बला के पास खड़े नौजवान जिन पर हमला किया। जादूगर और बला की तवज्जो हट गई और मैंने उस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए आनिया को आवाज दी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, आनिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लोग तुम्हें यहाँ अगवा करके लाए हैं। ये बहुत बुरे हैं और वो जो हिरणों का खून पी रहा है वो एक बुरा और गंदा जिन है। उसे शमून बाबा ने वापस कैद करना है और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी रिहाई एक जादू के हिसार टूटने की वजह से हुई है और वो हिसार वापस कायम हो सकता है अगर तुम अपनी उसी हाथ पर जिसका खून पत्थर पर गिरा था, उस हाथ पर आग के अलाव से एक अंगारा निकाल कर रख दो। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन इस तरह बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। तुम ऐसा करोगी ना आनिया? तुम्हारा हाथ शमून बाबा फिर से ठीक कर देंगे। आनिया ने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने उसे हौसला दिलाते हुए फिर से कहा, शाबाश आनिया, शाबाश। अगर तुम ये कर लोगी तो हम अपने घर भी वापस जा सकेंगे। हिम्मत करो आनिया। घर जाने की बात सुनकर आनिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जख्म वाला हाथ आगे बढ़ाया और आग के अलाव से एक अंगारा उठाकर मुट्ठी में दबा लिया। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार जाहिर हुए और उसके मुंह से दर्द में डूबी हुई एक घुटी घुटी चीख भी निकली। उसने हाथ छटकने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबा लिया। शमून बाबा ने उस जादूगर और नौजवान जिनजादे को कैद कर लिया था, मगर अब उनके सामने वो बला खड़ी थी जो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर रही थी और शमून बाबा कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही बला की ताकत खत्म होने लगी। अंगारे ने आनिया की जिल्द को जलाना शुरू कर दिया था और जादुई हिसार वापस कायम हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उस बला को दोबारा कैद कर लिया गया। जादूगर और नौजवान जिनजादे को सरदार ने सजाए मौत सुना दी और उसी वक्त उस पर अमल हो गया। शमून बाबा ने आनिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और एक पल बाद हटाया तो हम दोनों ये देखकर हैरान रह गईं कि आनिया की हथेली पर जख्म या जलने का कोई निशान तक न था। शमून बाबा ने हमारा घर भी हमें वापस दिला दिया और बाबा के दोस्त को वो घर और कारोबार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और वो हमारे जवान होने तक हमारी कफालत करते रहे। जब हम मुकम्मल तौर पर अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब वो आखिरी बार हमसे मिले और फिर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए। अब हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और हम अपने घरों में बहुत खुश हैं। मगर आज भी जब हम दोनों मिलकर बैठती हैं तो हमें शमून बाबा और खिज़र बहुत याद आते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।